اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ. روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے نا، قربانی کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، کار خیر ہے، نیک کام ہے. مگر جب یہاں رسول کی تقدم سے پہلے کی بات آ رہی ہے تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ تم رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ تم رسول کے بات کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اور جو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو سن لو، جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے گا تو بے شک وہ تقوی والا ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. جب یہ آیت کریمہ سمجھ میں آ گئی، ایک اور آیت کریمہ سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. رب قدیر نے اپنے محبوب کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا کیا طریقہ سکھایا ہے، کیا ادب سکھایا ہے. ایک آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض وان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر حافظ قرآن ہوں گے تو آیت مگر پڑھنے میں صحیح تو یہ بتائیے گا. حافظ ہے نا، آیت ٹھیک پڑھاؤں نا؟ ہاں، اگر کہیں مسٹیک ہوگا تو قرآن عظیم کی آیت مقدسہ ہے. یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. سبحان اللہ. تم اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور تم نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا. سبحان اللہ. وان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. نیکیاں جو تم نے کی ہے، نمازیں جو پڑھی ہے، زکات کی ادائیگی کی ہے، حج کی ادائیگی کی ہے، سارے اعمال حسنہ کیے ہو، اگر تم رسول کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرو گے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں احساس تک نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے میرے ملت کے نوجوانوں. آپ جانتے ہیں یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا پس منظر دیکھیے. ایک صحابی ہے حضرت قیس ابن اشحاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی آواز ذرا اونچی تھی اور جو لوگ اونچی ذرا سنا کرتے ہیں، جو کان کے تھوڑے بہرے ہوا کرتے ہیں، وہ تھوڑا بولتے بھی ہیں تو بلند آواز سے بولتے ہیں. عموماً ایسا دیکھا جاتا ہے. تو یہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب حاضر ہوتے تھے تو اونچی آواز میں بات کرتے تھے. تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اب صحابہ کرام کا حال دیکھیے، کیفیت دیکھیے. اب ان پر کب کبھی طاری ہو گئی. اب یہ ان کے جسم کے رونگٹے کانپنے لگے. بارگاہ مصطفیٰ میں اب یہ حاضر بھی نہیں ہو رہے ہیں. تقریباً 3 دن کا وقت گزر گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ کیا ہوا، قیس ابن اشحاف کو نہیں دیکھ رہا ہوں. چنانچہ آدمی بھیجا گیا. آدمی جب بھیجا گیا حضرت قیس ابن اشحاف کہتے ہیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور وہ رو رہے ہیں، اپنے آپ میں گریہ بازاری کر رہے ہیں. کہا کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال برباد ہو گئے ہو. میں نبی کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے اعمال برباد ہو گئے ہوں گے. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اتنا سنا، آپ نے اس کی ڈھارس بڑھائی. ارشاد فرمایا کہ جو پہلے ہوا وہ معاف ہے، اب آئندہ ایسا نہیں کرنا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں جب حاضر ہوتے تھے تو اتنی آہستگی آواز سے بات کرتے تھے، یہاں تک حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اتنی آہستگی سے بات کرتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی شبہ ہوتا تو کئی بار دوبارہ پوچھ لیا کرتے تھے. اب اندازہ کیجئے صحابہ کرام بارگاہ مصطفیٰ میں بلند آواز سے باتیں کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا. اور جن لوگوں نے ایسا کیا ان کے لیے رب قدیر نے بشارت دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ. ہاں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آواز پست رکھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تقوی پیدا کر دیا ہے اور تقوی کے ساتھ پرکھ لیا ہے. سبحان اللہ. میرے ملت کے نوجوانوں، جب یہ آیت کریمہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہ آیت کریمہ بتا یہ رہی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں کس طریقے سے بولنا ہے، آواز اونچی نہیں کرنا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، 2 آیات کریمہ آپ نے
बारगाह का क्या अदब रब्बे कदीर ने मुरतब किया है, क्या कानून बनाया है, क्या उसूल बनाया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक मर्तबा का जिक्र है कि कबीला बनी तमीम के कुछ लोग दोपहर के टाइम में बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए। दोपहर के टाइम में उम्मन लोग आराम कर रहे होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप हुजरा मुबारका में आराम फरमा रहे थे। अब वो लोग ऐसे ही हुजरा मुबारका के पीछे से आवाज दे रहे हैं आम लोगों की तरह। तो आयते करीमा नाजिल हुई, वो आयते करीमा इन्नल लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजरात व अक्सरुहुम ला याकिलून, कि बेशक है महबूब वो लोग जो आपको हुजरा मुबारका के पीछे से आवाज देते हैं उनमें के अक्सर गाफिल हैं, बेअकल है, यानी जाहिल है। ऐसे लोगों को गोया के बताया ये जा रहा है कि मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होने का तरीका ये है कि जब तुम देख रहे हो कि मेरे महबूब आराम कर रहे हैं तो तुम उनका इंतजार करना, वो निकलते तो तुम फिर उनसे मिलते। आएगा आयत करीमा है मम्मा तब अंत खुर्जा, यानी ऐ महबूब जब आप निकल जाते यहाँ तक कि वो इंतजार कर रहा होता। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये 3 आयतें करीमा आपने समाप्त की है। ये 3 आयतें करीमा का पस मंजर बता ये रहा है कि नबी की बारगाह में किस तरीके से पेश आना है, नबी की बारगाह में किस तरीके से हाजिर होना है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर ये बात समझ में आ गई तो शादी की महफिल है, एक वलीमा की बात हो जाए और ये मेरा मौजू भी हो जाए और आयत करीमा एक और मिल जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जब निकाह हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने वलीमा की दावत करना सुन्नत है। लेकिन आप लोग आज क्या करते हैं, वलीमा कहाँ करते हैं, पहली दिन भोज खिलाते हैं। हालांकि भोज खिलाते हैं, अगर यही शब ज़ुफ़ाफ के बाद खिलाते तो वलीमा भी हो जाता, वलीमा करना सुन्नत है। बहरहाल प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत ज़ैनब बिन्त जहश से निकाह किया तो आपने वलीमे की दावत की। वलीमे की दावत में जब लोग हाजिर हुए, जगह की कमी थी, कुछ लोग खा रहे थे और कुछ लोग जा रहे थे, आते जाते इस तरीके से सिलसिला, क्योंकि जगह की कमी होती है तो ऐसा होता है, क्योंकि देवर में लोग खाया करते हैं। अब उसी दौरान हुआ ये कि 2-3 लोग खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद फारिग भी हो रहे थे, लेकिन जब आपस में वो लोग गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे तो बात का सिलसिला जरा आगे बढ़ता चला गया और वो लोग गुफ्तगू में इस तरीके से मशगूल हो गए, उन्हें पता ही नहीं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असियत हो रही है, तकलीफ हो रही है। और जाहिर सी बात है कि मेहमान को जरा कोई आदमी जब इस तरीके से देखेगा तो थोड़ा महसूस करता है कि जरा उसको इस तरीके से मना न किया जाए डायरेक्ट। लेकिन बहरहाल जब वो लोग इस तरीके से गुफ्तगू कर रहे थे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ गया तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, प्यारे महबूब की तकलीफ जो थोड़ी सी हुई है, रब्बे कदीर ने अपने आप जब जिब्राइल अमीन को ये आयत करीमा देकर के भेजता है, क्या जिब्राइल जाओ और ये आयत करीमा लेकर के जाओ, ला तदखुलू बयूतन नबिय्या इल्ला अय्यूजना, यानी ऐ लोगों जब तुम नबी की बारगाह में यूं ही नहीं हाजिर हो, जब तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाया जाए तब आओ, वहां जाने के बाद इंतजार न करो, वैजा तायुम फंतशिरू, और जब तुम खाना खा लो तो फैल जाओ, यानी वहां से हट जाओ ताकि मेरे महबूब को कुछ तकलीफ ना हो। सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये चंद आयतें करीमा, पूरी कुरान अज़ीम की आयतें करीमा जो मैंने तिलावत की है, ये इस बात का सबूत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान क्या है, और ऐसी शान है कि जिस शान को रब्बे कदीर ने खुद मुरतब किया है, रब्बे कदीर ने खुद कानून बना दिया है। और यही तक नहीं, एक और आयत करीमा सुनिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, कुरान अज़ीम में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, यानी सहाबाए किराम बारगाह मुस्तफा में जब हाजिर होते अर्ज करते या रसूल अल्लाह फला फला काम है, और अगर कोई बात प्यारे आका की अगर समझ में नहीं आती, कुछ लोग पीछे होते, दूर होते, ये माइक का जमाना नहीं था, कुछ लोग दूर होते तो उसे पूरी आवाज सुनाई नहीं देती, तो वो सहाबा खड़े होकर के अर्ज करते राइना या रसूल अल्लाह, यानी हमारी भी रियायत कीजिए या रसूल अल्लाह, यानी हमको भी सुनाइए आप क्या फरमा रहे हैं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब ये आयत करीमा जब सहाबाए किराम का जो ये अमल था, इस अमल की वजह से हुआ ये कि यहूदी लोग राइना का मतलब कुछ और लिया करते थे। वो लिया ये करते थे कि राई का माना आता है
चरवाहा। तो सहाबे किराम को राइना कहते थे। नियत ये थी कि या रसूल अल्लाह हमारी रियायत कीजिए, लेकिन यहूदी लोग ये मुराद लेते थे कि या रसूल अल्लाह आप हमारे चरवाहा हैं माअज़ल्लाह। तो एक आयत करीमा से जिससे शुबह हो रहा था कि एक यहूदी उसका मजाक उड़ाए, तो अब सहाबा को हुक्म दिया गया, ऐ सहाबा राइना ना कहो बल्कि उनसुर ना कहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उनसुरना, यानी ये कह दो ऐ नबी हम पर भी नजरे करम कीजिए, हम पर भी नजरे इनायत कीजिए, हमें भी आप अपनी बात सुनाइए। सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बात जरा गहरी हो गई है, बात जरा इल्मी है। अब मैं ज्यादा आपको जहन को ज्यादा बर्बाद नहीं कराऊंगा। बस ये आयत करीमा सुनाने के बाद अब मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि ये चंद आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है, इस सारे का लब्बो लुबाब ये है कि बारगाहे मुस्तफा में हाजिर होने का तरीका ये है, अदब का तरीका ये है, कानून का तरीका ये है जो, और ऐसा कानून है जिसको मुरत्तब किया है रब्बे कदीर ने। दुनिया का जो बादशाह होता है उसका मुरत्तब करने वाला कानून वो खुद बादशाह होता है, मगर प्यारे आका की बारगाह का कानून बनाने वाला रब्बे कायनात है। जब इतनी बात समझ में आ गई, अब मेरे मिल्लत के नौजवानों दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई बादशाह के कानून के खिलाफ वर्जी करता है, वो बादशाह की नजर में मातूर समझा जाता है, मुजरिम समझा जाता है। बिला तशबीह और तमसील, जिन लोगों ने भी नबी की शान में पहुंच करके बेअदबी की है, गुस्ताखी की है, मेरे मिल्लत के नौजवानों रब्बे कदीर ने उनको कैसी सजाएं सुनाई है। कुरान अजीम की आयत करीमा को पढ़िए, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा को पढ़िए, पूरी तफसीर समझ में आ जाएगी कि अबू लहब जिसने बारगाहे मुस्तफा में गुस्ताखी की थी, उम्मे जमील जो उसकी बीवी थी बारगाहे मुस्तफा में पहुंच करके गुस्ताखी की थी, तो रब्बे कदीर ने उसे दुनिया में भी और आखिरत में भी उसके लिए अजाब तैयार कर रखा है। सुभान अल्लाह। ये किनके लिए? जिन्होंने बारगाहे मुस्तफा में गुस्ताखी की है, जिन्होंने शान मुस्तफा में गुस्ताखी की है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इससे ही नहीं महदूद, एक और आयत करीमा पर ये कुरान अजीम की बहुत सूरह मशहूर सूरह है, सूरह नून। सूरह नून में मक्का की सरजमीन पर एक काफिर था जिसका नाम वलीद बिन मुगीरा था। वलीद बिन मुगीरा ने मेरे नबी की शान में जब गुस्ताखी की थी, तो मेरे मिल्लत के नौजवानों रब्बे कदीर को ये गवारा न हुआ कि मेरे महबूब की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे, रब्बे कदीर की महबूब के शान में गुस्ताखी करने वाला गुस्ताखी कर रहा है, मगर उसका जवाब खुद रब्बे कायनात पूरी सूरह नून को पढ़िए। सूरह नून के अंदर वलीद इब्ने मुगीरा को जो कहा गया है, हरामी तक कहा गया, उतुलुम बाद ज़ालिका जनीम। आप कह रहे होंगे मौलाना हरामी का लफ्ज निकाल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान अजीम का लफ्ज पढ़िए, उतुलिम बाद ज़ालिका जनीम। ये कुरान अजीम की आयत करीमा है। जिस भी मकातिब फिक्र की किताब को पढ़ जाइए, तर्जमा कुरान को पढ़ जाइए, उसका तर्जमा यही है, यानी वलीद बिन मुगीरा के बारे में जो कहा गया कि ये बुराइयों से खैर से रोकने वाला है, वो चुगलखोर है, वो तुलिम बादा जाली का जनी, वो गोया के हरामी नुत्फे से पैदा हुआ है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब ये आयत करीमा नाजिल हो गई, वलीद इब्ने मुगीरा तो अब बिल्कुल गुस्से से बिल्कुल लाल पीला हो गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, उसने अपने आप पे गौर किया कि 10 जो बुराइयां बयान की गई है, वो 10 बुराइयां हमारे अंदर, 9 बुराइयां तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन 10वीं बुराई जो हरामी मुझे कहा गया है, क्या मैं हरामी हूँ या नहीं हूँ, इसकी हकीकत तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे इसकी हकीकत मेरी वालदा बताएगी। नाम से मेरे मिल्लत के नौजवानों, वलीद इब्ने मुगीरा अपनी माँ के पास जाता है, कहने लगा, ऐ मेरी अम्मा बताओ तो सही 9 बुराइयां जो हमारे ताल्लुक से कुरान अजीम में नाजिल हुआ है, उसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन 10वीं बुराई की हकीकत मुझे मालूम नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब वलीद इब्ने मुगीरा ने अपनी माँ को इस तरीके से प्रेशर में लिया और खूब असरार किया, तो उसकी माँ ने हकीकत हाल बताया, ऐ बेटे सुन ले, दरअसल बात यह है कि तेरा बाप बहुत मालदार था, मगर मालदार होने के साथ मैंने ये समझा कि उनके वो तुम्हारे शौहर मेरे वालिद के तुम्हारे जो वालिद थे वो बिल्कुल नामर्द थे, इसलिए मैंने किसी के चरवाहे के साथ भला काम किया और उसके बाद तू पैदा हुआ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इतना सुनना था, उसके बाद वलीद इब्ने मुगीरा गुस्से से और भी लाल पीला हो जाता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आगे तक तफसील बताना नहीं चाहूंगा, बताने का मकसद ये है कि जिसने नबी की शान में गुस्ताखी की, बारगाहे मुस्तफा के अदब के खिलाफ किया, रब को गवारा नहीं हुआ, रब ने उसका जवाब दिया है और पूरी सूरह नून आयत नाज़िल करके दुनिया वालों को पैगाम दिया है, दुनिया वालों सुन लो, ये मेरे महबूब की बारगाह है, जहां अगर गुस्ताखी करोगे इसका
یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہم اس نبی کی شان بیان کر رہے ہیں جس نبی کی شان کا عالم یہ تھا۔ میرے ملت کے